Morning students. Today we'll discuss about electron gain enthalpy. Last class we have discussed about the ionization enthalpy, and today we'll discuss about the electron gain enthalpy. What is electron gain enthalpy? Now when an electron is added to a neutral gaseous atom to convert it into a negative ion, the enthalpy change accompanying the process is defined as electron gain enthalpy and is represented by delta EGH. Okay, so what is the change of enthalpy or change of energy when one gaseous atom is actually accepting one electron and convert into a gaseous ion, and that is actually called anion. Okay, why? The negatively charged ion by accepting the electron. So at that time the amount of energy which is released, so that is called electron gain enthalpy. Normally the electron gain enthalpy is coming in negative. Okay, so why? Because amount of energy released, that is actually released means it is coming in negative, and that's why it is called actually but sometime it is actually forming as a positive also. So when it should be positive and when it should be negative, that also we'll discuss. Okay, now we are coming for the next portion here. So it is written here. So what is the actually enthalpy change or energy released also you can say. Depending on the element, the process of adding an electron to the atom can be either exothermic or endothermic. Means energy can be absorbed or energy can be released. So exothermic कब हो रहे और endothermic कब हो रहे. So that is the condition. For many elements, energy is released when an electron is added to the atom, and electron gain enthalpy is coming as negative. For example, group 17 element है ना, जितने halogens है, तो they are very nearer to the which one? That is you can say the noble gas, है ना. तो at that condition they are actually having very high negative electron gain enthalpy because they can attain the noble gas configuration by getting one electron only. जैसे chlorine, so what is the atomic number? 2s17, and what is the electronic configuration? 2s7. So it needs one electron to complete the or to attain the noble gas configuration. So that's why they have very high negative electron gain enthalpy. Okay. On the other hand, जब noble gases की बात करें तो noble gases की बात करें तो हम क्या देख सकते हैं इधर? You can see here the noble gases are coming in positive. This is electron gain enthalpy is written here. This is electron gain enthalpy is written here. So when we are going from left to right, we'll show that one also. So this is in the period, and this is the this is in the group and period. I will show you that one. So first we'll discuss where it should be positive. So it is coming in case of noble gases. They have the large positive electron gain enthalpy because the electron कहाँ पे अभी ऐड होना है. जैसे यहाँ पे कौन सा है 1s2. अभी इलेक्ट्रॉन को ऐड होना है तो कहाँ पे ऐड होना है 2s1 में. मतलब नेक्स्ट जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है ये रहा प्रिंसिपल क्वांटम लेवल, उसमें नेक्स्ट जो हायर प्रिंसिपल क्वांटम लेवल है उसमें क्या इलेक्ट्रॉन्स को ऐड होनी है. सो एट दैट कंडीशन जब नेक्स्ट हायर लेवल में इलेक्ट्रॉन को ऐड करनी है तो एनर्जी रिलीज नहीं होगा, बल्कि आपको एनर्जी को क्या करना पड़ेगा. वी हैव टू प्रोवाइड द एनर्जी टू एक्सेप्ट एन इलेक्ट्रॉन. Okay, so that's why it may be noted that electron gain enthalpies have large negative values towards the upper right of the periodic table preceding the noble gases. So we are coming about the, we can say here this is noble gases electron gain enthalpy, and this is actually the first group 1 electron gain enthalpy. So when you are going down the group, you can see the electron gain enthalpy actually reducing. Why it is reducing, that also we'll discuss. So now the variation in electron gain enthalpies of element is less systematic than for the ionization enthalpies. जैसे आयनाइजेशन एंथैल्पी हम लोगों ने एक सीरीज सिस्टमेटिक एक इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट हम लोगों ने देखा था, लेकिन यहाँ पे ऐसे सिस्टमेटिक हमें नहीं मिलेगा. कैसे नहीं मिलेगा? एज ए जनरल रूल इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बिकम्स मोर नेगेटिव विद इंक्रीज इन द एटॉमिक नंबर अक्रॉस अ पीरियड. सो आई विल शो यू हियर अक्रॉस अ पीरियड. वी कैन सी, लुक एट हियर, this is electron gain enthalpies, है ना.
and this is the group 1, and this is actually period 1, period 2. You can see here lithium, beryllium, boron, carbon, nitrogen, oxygen, fluorine and neon. Here the electron enthalpy minus 60, and then it is coming in positive, and then it is coming more, it is coming which one? Now more negative, minus 83, then minus 122, then again it is coming plus 31, then it is coming minus 141, again it is minus 328, means again it is increasing, more negative we can say, not increasing, more negative we can say, and that is coming again plus. For which one plus? It is coming in neon. So that is actually noble gases. So we can see there is not a regular increment or regular arrangement. We can see the about which one? Nuclear charge. So the variation we can see here, the variation is not coming in a regular trend. What is the reason behind that? Now where the stabilities are coming, means half fill condition या full fill condition. Where the stability is coming, there we have to provide the energy to accept an electron. And next, when you are going from left to right, what is happening? Atomic size is reducing. All of you know that one. And when atomic size is reducing, that means effective nuclear charge is increasing, and so that it will be easy for that atom to accept the electron, है ना? क्योंकि आउटर मोस्ट जो वैलेंस शेल है उसमें अगर न्यूक्लियस की चार्ज और अट्रैक्शन, मतलब इन दैट सेंस अट्रैक्शन वी कैन से, अट्रैक्शन अगर ज़्यादा हो तो डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना आउटर मोस्ट शेल में ईजी हो जाएगा. तो व्हेन यू आर गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, द एटॉमिक साइज इज रिड्यूसिंग, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज इंक्रीजिंग देयर, है ना. सो एट दैट कंडीशन व्हाट यू कैन से, ना accepting an electron is very smooth for them, very easy for them, and so that the energy released is more. जैसे एक एग्जांपल मैं आपको दे देती हूँ कि मान लो एक ह्यूज स्टोन है और एक है स्मॉल स्टोन. सो व्हेन you are pulling the stone, है ना. So in which condition in you the energy is remaining more? Definitely in that condition जहाँ पे आप easily इसको पुल कर सकते हो. यहाँ पे आपको क्या, एक्सपेंड ऑफ एनर्जी इज मोर हेयर, आपको ज़्यादा एनर्जी इसमें देना पड़ रहा है टू पुल द स्टोन हेयर, ह्यूज स्टोन हेयर. सो द अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिमेनिंग इन यू दैट इज वेरी लेस. यहाँ पे रिमेन इन यू वेरी मोर एनर्जी है. सो डेफिनेटली जो एनर्जी रिमेन रह जाएगा दैट विल बी रिलीज्ड. रिएक्शन में क्या हो जाएगा, जो एनर्जी रिमेन हो जाएगा वही रिलीज होगा. तो यहाँ पे एनर्जी क्या हो जाएगा, कम, मीन्स लेस नेगेटिव हो जाएगा, ये लेस नेगेटिव हो जाएगा. और यहाँ पे क्या हो जाएगा ना, मोर नेगेटिव एनर्जी विल बी रिलीज देयर. सो एट दैट कंडीशन जहाँ पे इजीली इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया जाएगा, जब मान लो ये एटॉमिक साइज अगर एटॉमिक साइज अगर ज़्यादा हो तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर, वैलेंस शेल की जो इलेक्ट्रॉन है उसके ऊपर न्यूक्लियस की जो अट्रैक्शन, हियर इट इज लेस and here it is more. So at that condition दूसरा एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना इसके लिए इजी है क्योंकि आउटर मोस्ट वैलेंस शेल में इसकी अट्रैक्शन ज़्यादा है कंपेरिजन टू दिस वन. सो अगर इजीली वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर पाए तो डेफिनेटली मोर नेगेटिव, है ना, मोर नेगेटिव एनर्जी विल बी रिलीज दिया. और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या आ जाएगा, मोर नेगेटिव है, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या हो जाएगा, लेस नेगेटिव, है ना, क्योंकि ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी किसमें है, इलेक्ट्रॉन को लेने के लिए चला जाएगा. तो डेफिनेटली जो बचा कुचा रहेगा दैट विल बी रिलीज्ड. सो अगर ये टोटली वैलेंस शेल हो या वैलेंस शेल फुलफिल्ड हो तो एनर्जी तो रिलीज होगा ही नहीं, एनर्जी और भी आपको देना पड़ेगा टू एक्सेप्ट दैट इलेक्ट्रॉन. क्यों ना, ऑलरेडी ये फुलफिल्ड है, स्टेबल कंडीशन है. ओके, सो दैट्स व्हाई वी आर सेइंग हियर कि when we are coming about the beryllium, when you are coming about the nitrogen, at that condition half filled conditions are there, so they have to utilize or apply the energy we have from outside, or we can say the to accept the energy to work out the reaction there or to accept an electron. यहाँ पे भी वही condition है जहाँ पे fulfilled outermost shell. What is the condition here? Now this is 1s2 2s2 2p6, 1s2 2s2 2p6 में सभी फुलफिल्ड है. तो डेफिनेटली उसको अगर इलेक्ट्रॉन को ऐड करना है तो क्या करना है ना, उसको नेक्स्ट जो प्रिंसिपल क्वांटम लेवल में इलेक्ट्रॉन को ऐड करना है. तो डेफिनेटली आपको बहुत ही इजी बात नहीं है, उसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए. अच्छा, सो नेक्स्ट वन वी आर कमिंग
सो वेरिएशन के लिए हमें एक बार देख लिया कि वेरिएशन एक सिस्टमेटिक वे में नहीं हो रहे. और नेक्स्ट वन, द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अक्रॉस अ पीरियड एंड कंसिक्वेंटली इट विल बी इजियर टू एड एन इलेक्ट्रॉन टू अ स्मॉलर एटम सिंस द एडेड इलेक्ट्रॉन टू एन एवरेज वुड बी क्लोजर टू द पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस. पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस के आसपास हो जाएगा जितना छोटा साइज हो जाएगा. So we should also expect electron gain enthalpy to become less negative as we go down the group. बात वही है, जब भी आप नीचे की तरफ जाओगे तो क्या हो जाएगा, एटॉमिक साइज बड़ा हो जाएगा. So when you are going down the group, the atomic size is increasing because new cells are. So electron gain enthalpy will be coming here less negative. You can see here minus 73, minus 60, minus 53, minus 48, minus 47, minus 46. So why? Because that attraction is decreasing and the distance between the nucleus and outermost valence shell is increasing. So it is very difficult for that atom to accept that electron. So that is understood now. अच्छा, नेक्स्ट वन वी आर कमिंग फॉर द कुछ डिस्क्रिपेंसी जो है इसमें कौन कौन सा डिस्क्रिपेंसी है ना. इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ ऑक्सीजन और फ्लोरीन इज लेस नेगेटिव देन दैट ऑफ द सक्सीडिंग एलिमेंट. देखो यहाँ पे दो डिस्क्रिपेंसी, एक है कि ऑक्सीजन और फ्लोरीन की सल्फर और क्लोरीन से, जैसे कि यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे जो होना चाहिए कि सल्फर ये जितना नीचे की तरफ जाएगा तब क्या हो जाएगा, डिक्रीज होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे देखो इंक्रीज हो गया, यहाँ पे इंक्रीज हो गया. तो इसका रीजन क्या है ना, ऑक्सीजन और फ्लोरीन की जो एटॉमिक साइज है बहुत ही क्या होता है, छोटा होता है ना, लोएस्ट होता है. सो एट दैट कंडीशन व्हाट इज द आउटर मोस्ट शेल है 2p, यहाँ पे क्या है 3p है ना. तो 2p में इलेक्ट्रॉन्स आर वेरी क्लोजर एंड दैट्स व्हाई इलेक्ट्रॉन रिपल्सन इज कमिंग मोर हेयर, क्योंकि 2p का साइज क्या होता है, छोटा होता है 3p से. तो इलेक्ट्रॉन बहुत क्लोज आ जाते हैं तो बहुत रिपील करते हैं, तो दे आर एक्चुअली प्रिवेंटिंग टू अनदर इलेक्ट्रॉन टू कम इन द आउटर मोस्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन. तो यही रीजन है इसके पीछे कि ड्यू टू इलेक्ट्रॉन रिपल्शन. और इलेक्ट्रॉन रिपल्शन क्यों हो रहा है, क्योंकि ड्यू टू दैट साइज इज वेरी लोएस्ट वन है ना, बहुत ही स्मॉलेस्ट वन. सो दैट्स वाई सल्फर और क्लोरीन से इसको क्या होना चाहिए था ना, बड़ा होना चाहिए था, लेकिन ये हो गया छोटा. क्यों छोटा हो गया, कि इलेक्ट्रॉन रिपल्शन के कारण वन मोर इलेक्ट्रॉन विल बी एक्सेप्टेड विद वेरी डिफिकल्टी देन कंपेरिजन टू द सल्फर. ऑक्सीजन के लिए सल्फर के कंपेरिजन में, फ्लोरीन के लिए क्लोरीन के कंपेरिजन में. एंड सो दैट लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज, क्योंकि ज्यादा एनर्जी किसमें हो गया खर्चा, उसमें इलेक्ट्रॉन लेने के लिए. ये बात है, बाकी डिस्क्रिपेंसी और नहीं है. और यहाँ पे और एक चीज है, देखो यहाँ पे दे के रखा है n=2 और n=3 क्वांटम नंबर, किसके लिए, सल्फर और क्लोरीन के लिए. अच्छा, नेक्स्ट वन वी आर कमिंग फॉर दैट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसको बोलते हैं ना, क्वालिटी मेजर ऑफ द एबिलिटी ऑफ एन एटम इन अ केमिकल कंपाउंड टू अट्रैक्ट द शेयर इलेक्ट्रॉन्स टू इटसेल्फ इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोनेगेटिव. तो मतलब अट्रैक्ट द शेयर इलेक्ट्रॉन को अगर खुद की तरफ कितना अट्रैक्ट कर पा रहे, तो डेफिनेटली अंडरस्टूड है, जिसकी साइज छोटा होगा तो इजीली अट्रैक्ट कर पाएगा. यही बात है, यही फंडा है इसकी. तो जितना आप लेफ्ट टू राइट जाओगे तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता जाएगा ना, बढ़ता जाएगा, क्योंकि साइज छोटा होता जाएगा. तो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को ये बहुत आराम से इसको अट्रैक्ट कर पाएगा एटम. ये कोई मेजरेबल क्वांटिटी नहीं है. और नॉर्मली हम पॉलिंग स्केल को यूज करते हैं. यहाँ पे देखो बहुत सारी स्केल हम यूज करते हैं इसके मेजरमेंट के लिए, जैसे पॉलिंग स्केल, जैसे मुल्लिकन जफी स्केल, जैसे एल्ग्रेड एंड रोचो स्केल. तो लेकिन सबसे ज्यादा इफेक्टिव कौन सा है, पॉलिंग स्केल. अब यहाँ पे देखना, ये पॉलिंग स्केल के अकॉर्डिंग यहाँ पे देख के रखा है, ये आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो देख के रखा है इधर. तो इसमें आप देखो कि सबसे ज्यादा किसके आ रहे हैं, फ्लोरीन को इलेक्ट्रोनेगेटिव, सबसे कम और एटॉमिक साइज सबसे स्मॉलेस्ट किसका आता है, फ्लोरीन को. इसलिए इसकी एटॉमिक जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है. अच्छा, इसके बाद देखो कि वैल्यू ऑफ फ्लोरीन, द एलिमेंट कंसिडर्ड टू हैव ग्रेटेस्ट एबिलिटी टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन्स, है ना. अच्छा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एनी गिवन एलिमेंट इज नॉट कांस्टेंट, इट वेरीज डिपेंडिंग ऑन द एलिमेंट ऑन व्हिच इट इज बाउंड. एक्चुअली द 3 फैक्टर्स आर देयर. अगर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात करें हम, तो 3 फैक्टर्स आर देयर. व्हाट आर द 3 फैक्टर्स हियर? Now first one is coming about the you can say first one is not given here, no. Okay, so in case of the electronegativity, so it will be depending upon the state of hybridization. Actually it is not given here, then also I can discuss here. So state of hybridization जैसे sp है, that is more electronegative than sp2, and then it is more electronegative than sp3, है ना.
जैसे डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है और यहाँ पे डबल बॉन्ड वाला कंडीशन, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड वाला कंडीशन। तो ये सबसे लोएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, अगर तीनों कंडीशन है तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन आएगा ना, sp। इसको बोलते हैं स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। फर्स्ट कंडीशन ये है फैक्टर। सेकेंड कंडीशन क्या है ना, जिसकी ऑक्सीडेशन नंबर ज़्यादा हो, जैसे Fe+3 और Fe+2, तो ऑक्सीडेशन नंबर किसका ज़्यादा हो रहा है, Fe+3 का। तो इसीलिए इसका जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ना, दैट विल बी कमिंग मोर। जैसे इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आ जाएगा 1.96 और इसका नेगेटिविटी आ जाएगा 1.83। ये सेकंड फैक्टर है कि ऑक्सीडेशन नंबर के ऊपर डिपेंड होता है। और एक डिपेंड होता है कि दूसरे कौन सा एलिमेंट के साथ ये अटैच है, जैसे ये CH3I है और CF3I है। तो इस कंडीशन में आप देखो कि कार्बन हाइड्रोजन के साथ अटैच है, कार्बन फ्लोरीन के साथ अटैच है। तो फ्लोरीन यहाँ पे सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो यहाँ पे कार्बन सबसे पॉजिटिव जो चार्ज किसके ऊपर ज़्यादा आएगा ना, CF3I में। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर दोनों मॉलिक्यूल के अंदर हम कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंपेयर करें तो यहाँ पे कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा आएगा, क्योंकि उसके साथ अटैच जो एलिमेंट है उसके बारे में आपको देखना है कि किसके साथ कार्बन अटैच है उसके ऊपर। ठीक है, तो ये हो गया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के फैक्टर्स। सो एंड दैट्स वाई कि यहाँ पे बोल के रखा है कि इट वेरीज डिपेंडिंग ऑन द एलिमेंट टू व्हिच इट इज बाउंड। ठीक है, अच्छा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जनरली इंक्रीजेस अक्रॉस द पीरियड। यहाँ पे सबका ही बोल के रखा है, बहुत ही फैंटास्टिक एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है इधर। तो इट इज एक्चुअली इंक्रीजेस अक्रॉस अ पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, है ना, एंड डिक्रीज डाउन द ग्रुप एंड इन द पीरियडिक टेबल। एंड इसके बाद हम देते हैं तो ये रिलेटेड टू कुछ जो है ना एटॉमिक रेडियाई which tend to decrease across each period than left to right but increase down the period. Okay, so electrons and the nucleus, देखो यहाँ पे क्यों हो रहा है, जितना एटॉमिक साइज आप छोटा होते जाएगा तो अट्रैक्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड द आउटर मोस्ट जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसमें इंक्रीज हो जाएगा, एटॉमिक रेडियस डिक्रीज हो जाएगा एंड द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, सेम अकाउंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज डिक्रीज डाउन द ग्रुप, क्योंकि जितना आप नीचे की तरफ जाओगे कितना होगा, एटॉमिक साइज बढ़ता जाएगा, 1 by 1 न्यू सेल ऐड होता जाएगा। तो एट दैट कंडीशन जितना डिस्टेंस बढ़ेगा उतना न्यूक्लियस के आउटर मोस्ट वैलेंस सेल के ऊपर अट्रैक्शन कम हो जाएगा एंड इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर द एटम टू अट्रैक्ट वन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन देयर। So the energy will be released less there, and at that condition electron gain enthalpy is coming, we can say here less negative. That is also a relation between electronegativity and the इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो ये हो गया आपकी पॉलिंग स्केल वाला रिप्रेजेंटेशन। यहाँ पे आप देखो कि ये तो वी कैन से अबाउट द पीरियड है। सो लेफ्ट टू राइट जब पीरियड में जाओगे वी कैन सी दैट वन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज इंक्रीजिंग, व्हेन यू आर गोइंग डाउन यू कैन सी द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डिक्रीजिंग। ओके, अच्छा, नेक्स्ट वन मोर पॉइंट वी आर डिस्कसिंग टुडे, दैट इज यहाँ पे दो एप्लीकेशन आपके पास देख के रखा है कि मेटेलिक और नॉन मेटेलिक रिलेशनशिप बिटवीन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड एटॉमिक रेडियस। एंड नाउ द रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड नॉन मेटेलिक, मतलब जितना आप देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगा उतना नॉन मेटेलिक कैरेक्टरिस्टिक्स प्रिडोमिनेट करेगा, है ना। तो और वी कैन से द प्रेफरेंस मिलेगा। तो आप यहाँ पे देखो कि नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स हैव स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन, देयरफॉर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट। ठीक है, and it can be further extended to say that the electronegativity is inversely related to the metallic properties, मतलब जितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम आएगा उतना ही वो मेटेलिक कैरेक्टरिस्टिक शो करेगा। अच्छा, और एक है कि ये तो हो गया नॉन मेटेलिक कैरेक्टरिस्टिक। सिमिलरली द डिक्रीज इन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डाउन द ग्रुप इज अकम्पेनिड बाय अ डिक्रीज इन द नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज। अच्छा, ये तो एक हो गया। और एक कैरेक्टरिस्टिक्स जो और एक एप्लीकेशन जो है दैट इज वी कैन से हियर पोलर एंड नॉन पोलर, है ना। पोलर एंड नॉन पोलर किसको हम बोलेंगे ना, बॉन्ड बिटवीन द सिमिलर एटॉम्स इज सेड टू बी नॉन पोलर। जैसे मान लो H2, तो यहाँ पे कोई पोलैरिटी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस नहीं है, सेम एटॉम है। तो एट दैट कंडीशन इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन पोलर। बट यहाँ पे अगर HCl और वी कैन से हियर अबाउट द HF, है ना, और वी कैन से HBr or we can say HI. So here we can see H or Cl. So Cl is more negative, electronegative than hydrogen. So it will be gaining, when they are forming the compound, it will be gaining delta minus and it will be gaining partial positive charge.
एंड डिफरेंट, तब पोलैरिटी यहाँ पे डेवलप होगा. यहाँ पे कोई पोलैरिटी डेवलप नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे सेम एटॉम इज सेम. यहाँ पे एटॉम्स आर डिफरेंट एंड दे आर ऑफ different electronegativity. So that's why chlorine with more electronegative, we can say electronegativity, and that's why they are, when they are in a compound HCl, they are getting the partial negative charge and H is getting the partial positive charge. And there agar polar jo we can say the dipole moment, if we are saying dipole moment is actually this is in that hydrogen fluoride is coming 1.86 divide है ना. डाइपोल मोमेंट को हम क्या कहते, पोलैरिटी डिफरेंस को डाइपोल मोमेंट बोलते हैं. एंड इन दैट कंडीशन वी कैन से पोलैरिटी HBr के लिए हम आ जाते हैं 0.79 डिवाइड एंड HI के लिए आ जाते हैं 0.38 डिवाइड. इन दैट कंडीशन HCl के लिए आ जाते हैं 1.11 डिवाइड. सो यू कैन सी हियर. सो वी कैन से डाइपोल मोमेंट सबसे ज़्यादा किसके पास आ रहा है 1.86. मतलब फ्लोरीन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, फ्लोरीन. among this 4 halogen, fluorine, chlorine, bromine, iodine में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन है. So at that condition, तो their dipole moment is coming 1.86 diopter, divide, and here it is coming 1.11. उसके बाद ब्रोमीन की मीन्स हाइड्रोजन ब्रोमाइड की 0.79 डिवाइड एंड उसके बाद हाइड्रोजन आयोडाइड की 0.38 डिवाइड. So we can see here, we can get the we can say dipole moment, polarity, non-polarity, and we can get also the metallic and non-metallic characteristics by applying this electronegativity.